Now, after a 17-day ordeal, the trapped workers in that collapsed tunnel in Uttarkashi are finally out. This took place at about 7:30 p.m. last night. Trapped workers started to come out one by one, and within an hour, 41 of those workers were out of that collapsed tunnel. The Chief Minister of the state, Pushkar Singh Dhami, was outside in order to welcome the rescued workers, along with Union Minister V.K. Singh there. This was after high-tech machines, the auger machines that failed to drill through the nearly 60 meters of rock that had threatened to bury the workers. A banned manual rat hole mining technique was successful, a technique that has been made illegal now. It has been banned on account of how dangerous that technique is. It's very primitive as well. The workers were brought out on specifically modified stretchers. The Chief Minister there has seen hugging the workers as they came out. The personnel from the NDRF had gone down the pipe first to assess the condition of the trapped men, and then they had to guide them through the rescue protocols. Each worker was strapped to the stretcher that was then manually pulled up through 60 meters of rock and debris. The rescue workers are now at the medical center 30 kilometers away. They are being kept for observation there, and we have my colleague Nukul, who is joining us from the hospital, outside the hospital. Nukul, take us through, we did see visuals of the trapped workers, all 41 of them. They seem to be all fine. They've said they're okay, but they're still being made to, to stay in the hospital for another few hours. Well, absolutely, Divya. We continue to report from the Chiliani Sort Hospital and the 41 workers who are inside and undergoing the observation period, medical observation period. But let me also tell you, there was one of the trapped workers whose name is Gabbar Singh Negi, who, in fact, we have given to understand that he was the one who was leading. Right now, I am being joined by his brother Jaimal Singh Negi. Sir, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, 17 दिन बाद वो बाहर आए हैं, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है इस चीज़ को लेकर? नहीं, ये बहुत खुशी की बात है और मन बहुत उत्साहित है, पूरा परिवार उत्साहित है, बल्कि परिवार ही नहीं, पूरा देश हमारा परिवार है, पूरा देश ही उत्साहित है. कल जब बाहर निकले तो हमने फूलों की माला भारत माता की जय की थी, और फिर उसके बाद जो है उनको वहाँ पे देखा गया, डॉक्टरों द्वारा चेक किया गया, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और जनरल V.K. सिंह द्वारा जो है उनको सम्मानित किया गया और उनका हौसला अफजाई किया गया, धन्यवाद दिया गया कि आप लोगों ने बहुत जो है तपस्या की है इतने दिन सुरंग के अंदर. सर, जब कल गब्बर जी बाहर आए तो आपकी पहली बातचीत में आपने क्या बातचीत हुई आपसे उनकी? मैंने कहा ठीक है, गले मिले और भारत माता की जय करे हुए, बस यही अपना भावुक पल तो था ही. मनोबल उनका शुरू से ही हाई था सर, बहुत हाई मनोबल था. बाहर आए तब भी आपने कहा भारत माता की जय उन्होंने कहा. तो किस तरह से, कितना एक्सपीरियंस उन्हें था, किस तरह से वो अपने आप को इतना स्ट्रांग रख पाए वहाँ पे? नहीं, मेरी लगातार बात होती थी उनसे, दिन में 3-3, 4-4 बार. पहले वो पाइप से कान लगा के मुँह से बोल करके बात होती थी, और उसके बाद जो बात होती थी वो जो है 8 इंची के पाइप के अंदर जो अपना सिस्टम था उससे बात हो जाती थी, ठीक ठाक बात होती थी. तो हमने शुरू में जब हम आए थे 14-15 दिन हम लोग यहाँ पे कैंप किए रहे, तो उनको बताया था कि भाई आप कैसे वहाँ पे मजबूती से इसको जो है इससे लड़ सकते हैं. तो आप योगा करिए, घूमिए फिरिए, आपस में हंसी मजाक करिए. तो उन्होंने वो सब अपनाया वहाँ पे, और उन्होंने पूरे सब का मनोबल बढ़ा के रखा. वो बड़ा बहादुर है, बड़ा संयमी है, धैर्यशील है. तो हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि हम पूरे श्रमिकों की ही बहुत, कि वो सकुशल बाहर आए. सर, जब उन्होंने ये कहा कि सबको आगे जाने दीजिए, मैं लीड करूंगा और मैं आखिरी में आऊँगा, तो इस हौसले को, वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ये हौसला है, लेकिन जब आपको ये खबर पता चली तो आप लोग की किस तरह से इस बात की प्रतिक्रिया थी? क्या नहीं, वो मेरे से कह रहा था कि चूँकि मैं यहाँ पे सीनियर हूँ, लिहाजा जो पहले मैंने कहा हबड़ दबड़ करोगे, नहीं बोला कोई हबड़ दबड़ नहीं करेंगे. हमने लिस्ट बना ली और मैं सबसे आखिरी में, जब सब लोग सकुशल बाहर आ जाएंगे तब मैं आऊँगा. कितने साल का एक्सपीरियंस था उन्हें, जो कितने सालों से वो टनलिंग का काम करते? टनल में करीब 20-25 साल से काम कर रहे हूँ, और ये पहला उनके साथ जो जीवन का 18 दिन का जो उनका सफ़र है
वो जीवन को समझने के लिए मैं समझता हूँ, मैंने उनको ये भी कहा था कि अपने जीवन को समझो कि किस तरह से जो है जीवन होता है, तो निश्चित रूप से उसको कुछ ना कुछ जो है ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। सर, एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, 17 दिन के बाद एक इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से 17-18 दिन बाद जो ये सफल हुआ है, बहुत प्रयास किया गया धरती के अंदर से इस विषम परिस्थितियों में, निश्चित रूप से कामयाबी है और प्रयास है, पूरा प्रयास भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो उनसे बन पड़ता था वो सब उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेशन किया। जो एक्सपर्ट्स बुलाने थे बाहर विदेशों से या अपने देश से, वो सब वहाँ पे आए और सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया अपना काम किया। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है अच्छे से, सबको जो है पूरे देश को जो है एक प्रकार से संयम में रखा है और किसी प्रकार की कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। और यहाँ पे हम लोगों का जितने परिवारजन हैं सबका बड़े संयम धैर्य से आशा और विश्वास से जो है सब लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया। सर, बस एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपकी बातचीत हुई होगी, हेल्थ कंडीशन कैसी है और क्या आगे की कार्रवाई रहेगी, क्या बताया गया आप लोगों को? हाँ, अभी हेल्थ जो है उनका चेकअप हो रहा है, बहुत सारी जांचें हो रही हैं और जब जांचें पूरी हो जाएंगी तो तब जो है पता लगेगा कि भाई क्या कमी उनके, चूँकि 18 दिन सूर्य की रोशनी और बाहर का वातावरण जो शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन है, उसमें कमी निश्चित रूप से शरीर में हुई होगी। कुछ लोग थोड़ा अभी कमज़ोर है, उनमें क्या कमी है वो सब डॉक्टर लोग चेक कर रहे हैं। जैसे वो पूरा चेकअप होता है तो तब पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद। So this was Jaimal Singh Negi, who's brother of Gabbar Singh Negi. He's going towards the hospital to meet his brother and take the stock of the situation as to what is the new update and how is his brother doing inside the hospital. Right, absolutely. Gabbar Singh, the last man standing, who said, I'll be the last one to be pulled out of those 41 workers, saying that he's had this experience before. He's been stuck in a similar situation 3 times over. We also have Kishore Rawat joining us from the tunnel side. Kishore, हमें ये बताइए कि आगे का प्लान फॉरवर्ड क्या है? हम जानते हैं कि बहुत ही तेजी से उन्होंने 41 वर्कर्स को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में निकाल लिया, उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट भी कर दिया हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनकी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। हम जानते हैं कि दे हैव स्पोकन विद द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि वो ठीक ठाक हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है फ्रॉम द हॉस्पिटल कि सब वहां पर अभी ठीक ठाक लग रहे हैं। इसके बाद क्या गोइंग फॉरवर्ड क्या प्लान है? इसके बाद जो अगला प्लान इन 41 लोगों के लिए इनके परिवार के साथ, जो इनके परिवार वाले यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ इनके घरों पर भेजा जाएगा। सरकार ने पूरी जो चीजें तैयारी कर ली है, फैसिलिटीज तैयारी कर दी है, उनके लिए गाड़ियां और बसेस तैयार की है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि 1-1 लाख रुपए इनको दिया जाएगा और इनके घर तक छोड़ने की पूरी व्यवस्था उत्तराखंड सरकार करेगी। अब ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था 17 दिन चला और ये तमाम जो यहाँ एजेंसियां थी सब ने राहत की सांस ली और सबको उम्मीद थी कि वो बाहर निकलेंगे, विश्वास था, लेकिन कई दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन उनको पार पाते हुए वो आगे की तरफ बढ़े। दूसरी बात यह है कि जो टनल की अगर बात करें तो टनल में अभी फिलहाल काम बिल्कुल रुका है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं वो जो एक एक्सपर्ट्स कमेटी है जो इसमें अपनी फाइंडिंग्स देगी किस तरीके से काम होना है, क्योंकि अभी भी टनल के अंदर जो मलबा है वो उसी तरह से है और धीरे धीरे गिर रहा है। रात भी हमारी जो रेड माइनर्स से उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने इस बात की कहा था कि मलबा जरूर गिर रहा है, वहां पे खतरा है और ऐसे में क्योंकि वो बहुत नजदीक से होके आया। इसके अलावा और भी जो कंपनी के अधिकारी है और कंपनी के कर्मचारी है, तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस बात का अंदेशा है कि ये मलबा थोड़ा और गिर सकता है। इसीलिए जब तक एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये संभवतः ये जो जगह है यहाँ पर काम है वो रुका रहेगा। सिक्योरिटी टाइट की गई है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है यहाँ पर और ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति टनल के अंदर नहीं जाए, क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि टनल के अंदर कैसा है, वो कहाँ रहे थे, तो लोग ज्यादा संख्या में जाते हैं और ऐसे में कोई हादसा हो सकता है और वो बहुत सेंसिटिव जगह है, इसलिए सिक्योरिटी हाई पर है। और जब तक फाइंडिंग नहीं आती है कमेटी की और भूवैज्ञानिकों की, उसके बाद ही यहाँ पर काम शुरू हो पाएगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो
एक बड़ा ऑपरेशन था, देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन था और इसमें 41 लोगों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकालने का जो जिम्मा सब पे दिया उन्होंने बखूबी निभाया। और अब सब जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जो यहाँ पे रेस्क्यू टीम में थी वो वापस अपने जो उनके कैंप्स हैं वहां पर लौट रही है। बिल्कुल आपने कहा कंट्री का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था एंड विदाउट मेंशनिंग द रैट होल माइनर्स ये एकदम ही इनकम्प्लीट होगा। आप प्लीज उनके बारे में बताइए, यू नो वर दे सेफ थ्रू आउट यू नो दैट 24-hour रेस्क्यू मिशन दैट दे हैड embarked upon just डे बिफोर। उन्होंने आपको ही बोला था 24 घंटे में हम निकाल पाएंगे एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। आर दे ऑल ओके, आर दे ऑल सेफ एंड यू नो व्हाट अबाउट देयर वेलबींग? बिल्कुल, जो रैट माइनर्स थे वो आखिरी क्षणों में उस समय आए जब सभी के लिए दिक्कतें दिमागों में थी, पैदा हो चुकी थी, मुश्किलें आ चुकी थी और सब ये सोच रहे थे कि अब वर्टिकल ड्रिल किया जाए, वहीं से निकाला जाए। उसमें समय भी लग सकता था और वो ऐसा समय था कि इन पर ही उम्मीद टिकी हुई थी। जो सलाह दी गई कि इनको बुलाया जाए, ये बहुत तेजी से काम करते हैं। जब ये आए और इनके जो फिजिकल के शरीर को देख के लग नहीं रहा था कि ये बहुत तेजी से काम करेंगे, लेकिन इनके हौसले बुलंद थे। इनको इनमें जो काम के जो टेक्निक थी इनके पास बहुत बेहतरीन थी और ये कई समय से काम कर रहे थे। जैसे ही आई और हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने एक भरोसा दिया। इनकी बात से ही लग रहा था कि वाकई ये काम करने आए और अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। जैसे ही इन्होंने कहा कि हम आए हैं और हम इनको लेकर ही बाहर आएंगे और 24 घंटे के अंदर इनको लेके आएंगे, वही हुआ जो इन्होंने कहा था और उसी तरह से सब कुछ हुआ। और जब इनकी हमारी बातचीत चल रही थी तो इनके चेहरे भी उसी तरह से थे, खिले हुए थे। ये खुश थे कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कुछ जो इनके साथ है उन्होंने कहा कि हम अक्सर पैसों के लिए काम करते हैं और सभी पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन इस काम को करके लगा कि हमने कुछ ऐसा काम किया है जिस पे शायद हमें लोग इज्जत दें और ये जरूर याद रखें कि हम भी लोग थे जिन्होंने काम किया था। और ऑपरेशन की बात करूं, सिर्फ इन्हीं की नहीं बात करूं, बाकी जो ऑपरेशन में लोग लगे थे सभी ने लगातार 17 दिन काम किया, 24 घंटे 3-3 शिफ्ट में काम किया। कई ऐसे लोग थे जिनके घरों में शादियां थी, वो वहां नहीं गए कि कई जगहों पर ऐसा था कि जो अपने बच्चों को छोड़ के आ रखे थे और लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार काम कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी एजेंसियां थी, लेकिन जो आखिरी समय था, जो आखिरी कुछ 9 मीटर 10 मीटर रह गया था जिसमें किसी को सूझ नहीं रहा था कि कैसे अब आगे बढ़ा जाए। अगर यहां से नहीं बढ़ा जाएगा तो कहां से बढ़ा जाए, इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस जो प्लान थे उस पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये रैट माइनर्स आए और इन्होंने एक बड़ी जो जीत होती है सब पूरे देशवासियों की जो भरोसा था उसको इन्होंने कायम रखा। दुनिया देख रही थी और जहां पे विज्ञान पहले जहां पे विज्ञान हारा उसके बाद आस्था आई, भगवान पे विश्वास किया और उसके बाद ये लोग आए। यानी नई टेक्नोलॉजी पूरी फेल हो चुकी थी, एक तरह से रुक चुकी थी। हालांकि उसने बखूबी काम किया, ये कहना गलत होगा कि उन्होंने काम नहीं किया, वो भी काम किया, लेकिन एक समय तक उसके बाद समझ नहीं आ रहा था क्या करना था। लेकिन हजारों साल पुरानी जो टेक्निक थी यानी जो रैट माइनर्स थे वो सामने आए। जिस टनल को दुनिया ने लगातार 17 दिनों तक देखा, उसी टनल से एनडीटीवी ने पहले दिन से ही कहा था और इस बात का भरोसा था कि यहां से ही रेस्क्यू ऑपरेशन होगा और यहां से सबसे ज्यादा परसेंटेज है और यहां से ही ये लोग बाहर निकलेंगे। और वही तस्वीरें 17वें दिन देर रात तक दिखती रही कि ये लोग यहां से निकले और सभी सुरक्षित निकले। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच Kishore Rawat for getting us all those details. We will keep coming back to you for more on that. First, let's just listen in to the 17-day ordeal from a rescued worker. Akhilesh Singh spoke with us and told us as to how he saw the tunnel collapse, that it collapsed just in front of his eyes. Listen in. Akhilesh Singh जी, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, हमें स्टार्टिंग से बताइए क्या हुआ जिस दिन टनल कोलैप्स हुआ था? जी मैम, मैं काम करके मैं वहां से आ रहा था, अपना काम खत्म करके मैं आ रहा था, तो मेरे सामने मैम 300-400 मतलब 300-400 आगे टनल कोलैप्स किया। तो आवाज हुआ मेरे कान में, मतलब थोड़ा सा आवाज हुआ तो कान पूरा सुन्न हो गया। वहां पे ऑक्सीजन के लिए एक डाक पाइप जाता, तो मुझे शंका था कि कहीं वो तो नहीं गिर गया। जब जाके सामने देखा तो मैम टनल थोड़ा कोलैप्स कर गया था ना। हाँ जी। तो टनल कोलैप्स कर गया था, बाकी मलबा और गिर रहा था। तो मेरे सामने सब हुआ तो मैं देख रहा था।
बाकी मेरे साथ एक और सर्वेयर था, 2 बंदे हम लोग सर्वेयर थे। हाँ जी। तो हम लोग के सामने ये सब घटना हुआ। बाकी सारे वर्कर को फिर पता चला तो वो लोग मैम फिर यहाँ पर आए तो फिर वो लोग फंस गए फिर। अखिलेश जी, ये एकदम जो माउथ ऑफ द टनल, जो एंट्री पॉइंट था टनल का, जो 2018 में बनाया गया था, वहां पर कोलैप्स हुआ है। क्या आपको उम्मीद थी कि आप सब बाहर निकल पाएंगे? जी मैम, जब टनल कोलैप्स किया तो हम लोग को तो पहले बताया जाता है हम लोग को ट्रेनिंग में कि अगर टनल कोलैप्स कर जाता है हम लोग को एक डिवाटरिंग का पाइप जाता है ना मैम, एक डिवाटरिंग का पाइप जाता है, मतलब एक इंड का होता है और एक आउट का होता है, जो पानी एक अंदर आता है और एक बाहर जाता है। तो हम लोग को इतना था कि ठीक है पहले पाइप लाइन खोलते हैं। हम लोग पाइप लाइन खोले, उस पाइप लाइन को खोल करके फेस से पानी चालू किए तो जो पानी था वो बाहर गया, ठीक है। तो उन लोग को सिग्नल मिला तो वो लोग हम लोग को 18 घंटे बाद उसमें से ऑक्सीजन छोड़ना चालू कर दिए। जी मैम। तो आपका 18 घंटे कोई कांटेक्ट नहीं था आउटसाइड वर्ल्ड के साथ? बिल्कुल भी नहीं? जी बिल्कुल 18 घंटे तक हम लोग का किसी से कांटेक्ट नहीं था। बाकी वहां पे जब मलबा गिरा, वो लोग जब मलबा हटाए, पूरा पाइप जब दिखा तो पाइप से मैम वो लोग कंप्रेसर से हवा आता है, ऑक्सीजन आता है, वो भेजे। बाकी दाना वाना हम लोग को भेजे, ठीक है मैम, और भीगा हुआ चना भेजे और लाची दाना वगैरह, ट्राई फूड भी हमारी कंपनी भेजी। हम लोग को मतलब जितना सुविधा हो सकता था उस पाइप से जितना जा सकता था हम लोग को मिलता था। लेकिन आप एक दूसरे की हिम्मत कैसे बनाए रखे, ये बताइए। जी मैम, जैसे हमारे पास जितने वर्कर है सभी को समझा कर के देखो जो मुसीबत हम लोग के ऊपर पड़ा है, हम लोग फंसे हैं, इसलिए हम लोग को हौसला बनाए रखा है। बाकी कंपनी वालों की तरफ से कुछ न कुछ कंटिन्यू भेजा जाता था हम लोग के लिए मैम। जिसको दवाई का भी जरूरत होता तो हमारा पाइपलाइन से डॉक्टर से भी बात होता था, तो वो लोग सो प्रोटीन वगैरह की दवाई, विटामिन डी की दवाई, ये सब भेजते रहते थे। बिल्कुल। तो हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम, आपने धूप नहीं देखी, 17 दिन विटामिन डी, विटामिन सी डॉक्टर्स ने देना शुरू किया। आप ये भी बोल रहे हैं कि आपको योगा करा रहे थे अंदर, क्रिकेट खेल रहे थे आप अंदर, ये रिपोर्ट्स सही है क्या? जी मैम, क्रिकेट के लिए तो मैम 10 दिन तक तो कोई एक्टिविटी नहीं था, क्योंकि वो जो पाइपलाइन था ना मैम वो 4 इंच का था। 4 इंच का मतलब छोटा होता है, अगर उसमें अगर रोटी या कुछ चावल वगैरह भेजेंगे तो पाइपलाइन जाम हो सकता है, तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलना भी बंद होगा। जब 6 इंच का पाइप आया ना मैम, तो उससे हम लोग को मैम ये क्रिकेट वगैरह का सब सामग्री भेजा गया। बाकी हम लोग को अब जैसे कि मैम खाकर बैठे हैं तो हम लोग वो भी ठीक नहीं, हम लोग थोड़ा टहलने वगैरह जाते थे, थोड़ा व्यायाम वगैरह करते थे अंदर में, जितना हो सकता था हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते थे। कितने दिनों के बाद आपने गर्म खाना या ठीक ठाक खाना खाया? मैम वही जब मैम पाइप जब हम लोग का सक्सेस हो गया, वहां से कंपनी के थ्रू भेजा गया 6 इंच का पाइप, तो मैम 10वें दिन के बाद 11वें दिन से हम लोग को मैम फल फ्रूट वगैरह, दूध वगैरह, खिचड़ी वगैरह, मतलब खाने पीने के भी तो फिर कोई कमी ही नहीं रखा मैम कंपनी। अभी हमारे पास इतना खाना मैं टनल में छोड़ के आया हूँ मैम, कम से कम 15-20 दिनों का खाना है अंदर में। अच्छा। 20 से 25 केजी तक मैम आपका काजू होगा, ड्राई फ्रूट होगा, बाकी 25 केजी संतरा, कम से कम 30 केजी मैम आपका सेब वगैरह है, ये सब पूरा अंदर में भी ये पड़ा हुआ है। हम लोग को बस पाइप दिखा, हम लोग बाहर आना चालू कर दिए मैम। And we also have tunneling expert Arnold Dix telling us how they remain calm and composed but causes nothing short of a miracle. Listen in. You heard how we got success. We were calm and we knew exactly what we wanted, and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the army, their engineers, the best I've ever worked with. All the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission. Just one part, and I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened. Because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. Calling it a miracle. That was Arnold Dix. But how are the families reacting? My colleague Saurabh Gupta gets us a sense of the celebration in the households of the rescued workers. Here is an account of the family members from Hooghly. Let's listen in. It's a matter of celebration for families like Shobhik Pakiraz that he's been rescued and is finally out of the tunnel and will soon be home. But the families have bigger worries, for example, income. And at least 100 to 150 people is what we're being told by locals from this area work on several projects. And around 9 or 10 people in this locality also work
in these similar projects, and for them it's a compulsion because there isn't enough income from agriculture, which these families are dependent on, and there aren't enough sources of income in their areas, which is why these young men have to go and travel and work outside to support their families. Today, Shobhik Pakira's mother is relieved that he is coming back, but he will have to again leave for work, and that's something that worries her. দিদি একটু আমায় বলুন, কথা তো হয়েছে, আপনি কালকে বললেন, কবে আসবে কিছু বলেছেন এবং কি তৈরি হচ্ছে, মানে প্রস্তুতি নিচ্ছেন ওর আসার জন্য বলতে এখনো খবর ফোন করেনি ছেলে, আজকে বললো যে মা কাল ভিডিও কল করা হবে, তারপর তারা জানাবে কবে তাদেরকে ছাড়বে। তাদেরকে তো কালকে করা হয়েছে, হাসপাতালে শিফট করা হয়েছে, এখন 3 দিন হয়তো সময় লাগবে। ফোনে জানালে আপনাদেরকে আবার জানাবো। আর কিছু মানে পুজো টুজো প্রস্তুতি বাড়িতে ওর কিছু ওর যেগুলো ভালোবাসে খেতে সেগুলো বানানো? হ্যাঁ, ও বাড়িতে আসুক, আসলে যেগুলো খেতে ভালোবাসে সেগুলো তো খাওয়াবো। মায়ের হাতের ছোঁয়া পেলি, খাবার পেলি সে ঠিক থাকবে। ফোনে তো দেখছি যে 17 দিন ভেতরে থাকলো, যে 17 দিন যে মানুষ একটা ভাবছিল যে কি হয়ে যাবে, কিন্তু তারা সেরকম নার্ভাসও হয়নি, শরীর সব ঠিকই আছে। আর একটা জিনিস আপনাকে জানতে চাইছি, এই শুনলাম এই গ্রাম থেকে 9 জন মনে হয় প্রায় এইরকম অনেক 150 আমাদের গ্রামের 150 ছেলে ওই টানেল প্রজেক্টে কাজ করে। এই এলাকার 150 এলাকার এই হরিণাখালী গ্রামে। এই গ্রামের কজন? 9 জন 10 জন মনে হয়। হ্যাঁ, এই হরিণাখালী গ্রামেরই 150 ছেলে ওইখানে। হ্যাঁ, ছেলে ওইখানে সব যে যার টানেল প্রজেক্টেরই বেশি কাজ করে সব। আচ্ছা, তো এখানে কি চাষবাস থেকে সেইভাবে হয়তো রোজগার হয় না, ওই জন্যই যেতে হয়? যে এখানে চাষবাস থেকে কত রোজগার হবে, বলবে দেশে কি পয়সা আছে, বাইরে তো যেতে হবে, নাহলে সংসারে কি করে সাশ্রয় হবে, কি করে সংসার চলবে, সেই তাগিদেই তাদেরকে ভিন দেশে যেতে হচ্ছে। তো এবার ধরুন ও ফিরে তো আবার কাজে বেরোতে হবে। সে আসুক, এখন মায়ের মন তো চাইবে না এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, তুই আমার চোখের সামনে থাক, আমি একটু দেখবো, কিন্তু মা ছেলেকে চোখের সামনে দেখলে তো তাদের ভবিষ্যৎ হবে না, আমাদেরকেও শক্ত হতে হবে। সে যদি যেতে চায় বাইরে যেতে হবে, এই অল্প জমি রেতে তাদের তো আর সংসার চলবে না, তাদের তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। Welcome back. Let's get you the very latest when it comes to the Uttarakhand tunnel collapse. Workers are out. They have been taken. They are under observation at the medical center. The Prime Minister has spoken with them. The Chief Minister hugged them as they came out. But to get more on their mental health, let's just first listen in to the Prime Minister and how he has appreciated their patience, their courage, and the way that they have stood the test of time and kept their cool under pressure. Let's listen in to what the workers had to tell the Prime Minister. हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे
तो जानकारी रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे, और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते सर। जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर, और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के आज इंसान को बचा के ला सकते सर। तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था, और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर
एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर, और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर, और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर, और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। Welcome back. Trap workers are finally out after 17 days. This took place shortly after 7:30 p.m. last evening. Trap rescue workers were being pulled out one by one, and it took about an hour to get the 41 out. The Chief Minister and Union Minister V.K. Singh were at the tunnel to welcome the rescued workers, and this is after high-tech machinery, the auger machines, failed to drill through nearly 60 meters of the rock that threatened to bury the workers. Banned manual rat hole mining technique had to be adopted, and the workers were brought out on specially modified stretchers. Chief Minister Dhami was seen hugging the workers as they came out, and personnel from the NDRF had gone down the pipe first to assess the condition of the trapped men and then guide them through the rescue protocols. Each worker was strapped to the stretcher, and that was manually pulled up through 60 meters of rock and debris. The rescued workers are at a medical facility which is 30 kilometers away from that tunnel that collapsed on the 12th of November. They are there for observation. They're going to be kept for another few hours. Families have been rejoicing across different parts of the country. Well, we spoke with a rescued worker, Akhilesh Singh, who said that he saw the tunnel collapse right in front of his eyes. Let's listen in. Akhilesh Singh ji, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, हमें स्टार्टिंग से बताइए क्या हुआ जिस दिन टनल कोलैप्स हुआ था? जी मैम, मैं काम करके मैं वहां से आ रहा था, अपना काम खत्म करके मैं आ रहा था, तो मेरे सामने मैम 300-400 मतलब 300-400 आगे टनल कोलैप्स किया, तो आवाज हुआ मेरे कान में, मतलब थोड़ा सा आवाज हुआ तो कान पूरा सुन्न हो गया। वहां पे ऑक्सीजन के लिए एक डार्क पाइप जाता, तो मुझे शंका था कि कहीं वो तो नहीं गिर गया। जब जाके सामने देखा तो मैम टनल थोड़ा कोलैप्स कर गया था ना। हाँ जी। तो टनल कोलैप्स कर गया था, बाकी मलबा और गिर रहा था, तो मेरे सामने सब हुआ तो मैं देख रहा था। बाकी मेरे साथ एक और सर्वेयर था, 2 बंदे हम लोग सर्वेयर थे। हाँ जी। तो हम लोग के सामने ये सब घटना हुआ। बाकी सारे वर्कर को फिर पता चला तो वो लोग मैम फिर यहाँ पर आए, तो फिर वो लोग फंस गए फिर। अखिलेश जी, ये एकदम जो माउथ ऑफ द टनल, जो एंट्री पॉइंट था टनल का, जो 2018 में बनाया गया था, वहां पर कोलैप्स हुआ है। क्या आपको उम्मीद थी कि आप सब बाहर निकल पाएंगे? जी मैम, जब टनल कोलैप्स किया तो हम लोग को तो पहले बताया जाता है हम लोग को ट्रेनिंग में कि अगर टनल कोलैप्स कर जाता हम लोग को एक डिवाटरिंग का पाइप जाता है ना मैम, एक डिवाटरिंग का पाइप जाता है, मतलब एक इंड का होता है और एक आउट का होता है, जो पानी एक अंदर आता है और एक बाहर जाता है। तो हम लोग को इतना था कि ठीक है पहले पाइपलाइन खोलते हैं। हम लोग पाइपलाइन खोले, उस पाइपलाइन को खोल करके फेस से पानी चालू किए, तो जो पानी था वो बाहर गया। ठीक है, तो उन लोग को सिग्नल मिला, तो वो लोग हम लोग को 18 घंटे बाद उसमें से ऑक्सीजन छोड़ना चालू कर दिए। जी मैम। तो आपका 18 घंटे कोई कांटेक्ट नहीं था आउटसाइड वर्ल्ड के साथ? बिल्कुल भी नहीं? जी हाँ, बिल्कुल 18 घंटे तक हम लोग का किसी से कांटेक्ट नहीं था। बाकी वहां पे जब मलबा गिरा, वो लोग जब मलबा हटाएं पूरा, पाइप जब दिखा तो पाइप से मैम वो लोग कंप्रेसर से हवा आता है, ऑक्सीजन आता है, वो भेजें। बाकी दाना वाना हम लोग को भेजें, ठीक है मैम, और भीगा हुआ चना भेजें और लाची दाना वगैरह, ट्राई फूड भी हमारी कंपनी भेजी। हम लोग को मतलब जितना सुविधा हो सकता था, उस पाइप से जितना जा सकता था हम लोग को मिलता था। लेकिन आप एक दूसरे की हिम्मत कैसे बनाए रखे, ये बताइए। जी मैम, जैसे हमारे पास जितने वर्कर है सभी को समझा करके देखो, जो मुसीबत हम लोग के ऊपर पड़ा है, हम लोग फंसे हैं, इसलिए हम लोग को हौसला बनाए रखा है। बाकी कंपनी वालों की तरफ से कुछ न कुछ कंटिन्यू भेजा जाता था हम लोग के लिए मैम। जिसको दवाई का भी जरूरत होता तो हमारा पाइपलाइन से डॉक्टर से भी बात होता था, तो वो लोग सो प्रोटीन वगैरह की दवाई, विटामिन डी की दवाई, ये सब भेजते रहते थे। बिल्कुल। तो हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम, आपने धूप नहीं देखी, 17 दिन विटामिन डी, विटामिन सी डॉक्टर्स ने देना शुरू किया। आप ये भी बोल रहे हैं कि आपको योगा करा रहे थे अंदर, क्रिकेट खेल रहे थे आप अंदर, ये रिपोर्ट्स सही हैं क्या? जी मैम, क्रिकेट के लिए तो मैम 10 दिन तक तो कोई एक्टिविटी नहीं था, क्योंकि वो जो पाइपलाइन था ना मैम, वो 4 इंच का था। 4 इंच का मतलब छोटा होता है, अगर उसमें अगर रोटी या कुछ चावल वगैरह भेजेंगे तो पाइपलाइन जाम हो सकता है, तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलना भी बंद होगा। जब 6 इंच का पाइप आया ना मैम, तो उससे हम लोग को मैम ये क्रिकेट वगैरह का सब सामग्री भेजा गया। बाकी हम लोग को
अब जैसे कि मैम खाकर बैठे हैं तो हम लोग वो भी ठीक नहीं, हम लोग थोड़ा टहलने वगैरह जाते थे, थोड़ा व्यायाम वगैरह करते थे, अंदर में जितना हो सकता था हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते थे। कितने दिनों के बाद आपने गर्म खाना या ठीक ठाक खाना खाया? मैम वही जब मैम पाइप जब हम लोग का सक्सेस हो गया, वहाँ से कंपनी के थ्रू भेजा गया 6 इंच का पाइप, तो मैम 10वें दिन के बाद 11वें दिन से हम लोग को मैम फल फ्रूट वगैरह, दूध वगैरह, खिचड़ी वगैरह, मतलब खाने पीने के भी तो फिर कोई कमी ही नहीं रखा मैम कंपनी। अभी हमारे पास इतना खाना मैं टनल में छोड़ के आया हूँ मैम, कम से कम 15-20 दिनों का खाना है अंदर में। अच्छा। 20 से 25 केजी तक मैम आपका काजू होगा, ड्राई फ्रूट होगा, बाकी 25 केजी संतरा, कम से कम 30 केजी मैम आपका सेब वगैरह है, ये सब पूरा अंदर में भी ये पड़ा हुआ है। हम लोग को बस पाइप दिखा, हम लोग बाहर आना चालू कर दिए मैम। At Shobhik Pakira's village, who's been rescued from that tunnel in Uttarkashi, there are prayers being offered at the local temple. Now this of course is where Shobhik Pakira's mother has also come to offer prayers after a rescue after 17 days. And for everyone who's involved in this rescue operation, it's also been a challenge. But for these families, it's been a moment of trepidation and fear. And of course here right now, Shobhik Pakira's mother has offered prayers in a sort of thanksgiving after this rescue at the Uttarkashi tunnel. Now this of course taking place in this village in Hooghly district of West Bengal. Thankfully for these families, they didn't have to spend another night in uncertainty, and the parents of Shobhik Pakira smiling for the first time. They're offering prayers here. This is of course Shobhik Pakira's mother, who's just offered prayers at the temple, and of course taking solace in the fact that her son of course has finally been rescued from that temple. একটা জিনিস জাস্ট আপনার কাছে জানতে চাইবো, এতদিন পরে আপনার মুখে একটা হাসি দেখলাম, আপনি বলছিলেন সবাইকে বার করে রানা উচিত, খুব এখন নিশ্চয়ই শান্তি হয়েছে? শান্তি হয়েছে, এখন ভালোই লাগছে যে আমার ছেলে ফোন করে বলছে আমরা 41 জনই ভালো আছি। আমরা যে 17 দিন ভেতরে ছিলাম আমাদেরকে দেখলে বোঝা যাবে না, আমরা খুব ভালোই আছি, শরীর মন সব ভালোই আছে। আর আজকে আপনি পূজো দিলেন, আপনি বলছিলেন সবাইকে বার করা, আপনি আগের দিন প্রথম দিন আমায় বলছেন প্রথম থেকেই আমি 41 জনের জন্যই ঠাকুরের কাছে ডেকেছি, শুধু আমার ছেলের জন্য নয়। আমি সব সময় জানতেন যে 41 জনই আমার সুরক্ষিত থাকে। এখনো আমি ঠাকুরের কাছে রাখছি, আমার গ্রামবাসীগণ সকলেই যেন ভোলে বাবার যায়, সব কিছু যেন তার নামে নামদাম করতে পারি। এখানে ঠাকুরই আছে, আমার ভোলে বাবার যায়, ওই আমার পথ দেখিয়েছি। That's of course an elated family smiling after months or actually days, given that they have finally been able to speak to Shobhik, and of course offering prayers at the local temple here after Shobhik Pakira's rescue in Uttarkashi from that tunnel after spending 17 days inside that tunnel. For the villagers too, it's a moment of joy as they finally get the good news and they don't have to spend another night in uncertainty. With camera person Aniruddha Tripathi at the Harinakhali village in Purshura in Hooghly district of West Bengal, Saurabh Gupta, NDTV. हमारे साथ जो है अखिलेश के चाचा जी विजय कुमार जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि क्या है, कैसा रहा आज हमारे 17 दिन बाद अखिलेश वापस आया है। आज 17 दिन बाद हमारे गांव और हमारे परिवार के लिए बहुत सुखद क्षण है। हमारे साथ अखिलेश कुमार सिंह के पिताजी रमेश कुमार सिंह भी हैं, बहुत ही हिम्मती हैं, बहुत ही इन्होंने जब भी हमारी इनसे बात हुई इन्होंने बताया कि मेरा बेटा बहुत दिलेर है, वो पूरी बहुत मजबूत इंसान है और यही मजबूती मुझे इनके में भी दिखी। अब हम इनसे पूछते हैं कि क्या है, कैसे आप अपने बेटे को कैसे विश करेंगे, उसको कैसे शाबाशी देंगे आप? भगवान से दुआ करूंगा कि वो कायदे से रहे और उसको सम्मान ही दूंगा, और क्या करूंगा मैं, इतना ही कर सकता हूँ। और आप इनके चेहरे पर जो खुशी है, आप इनके चेहरे पर जो खुशी है उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलूं। इन्होंने कहा कि मैं क्या बोलूं। हमारे साथ इनके पास बोलने के लिए हमारे साथ गांव के भी हैं। इनके पास इतनी खुशी है, कौतूहल से उमंग में ये हुआ कि इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं, शब्द ही कम पड़ा, इतनी इनके पास खुशी भरी हुई है। खुशियों का माहौल हमारे घर परिवार में छाया हुआ है। हमारे साथ इनके बड़े पिताजी
बड़े पिताजी भी हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताएं। आज ये खबर सुन करके कि आने वाले हैं बाहर, तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी। उस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। Welcome back. At least 5 states have been put on health alert as far as the centre's directive to review readiness in view of a surge in respiratory illnesses amongst children in China. State governments in Rajasthan, Karnataka, Gujarat as well as Uttarakhand and Tamil Nadu have asked hospitals and healthcare staff to ensure preparedness to tackle patients complaining of respiratory issues. Moving on to more news now, and the Madras High Court has put a stay as far as the ED summons to 5 collectors is concerned. A setback for the Enforcement Directorate in the Tamil Nadu sand mining probe. In the interim order, the High Court has put a stay as far as the summon is concerned for a matter of 3 weeks. In Tamil Nadu, the Parliament did not give power to the ED is what the government is saying, and the ED cannot summon officials directly is what the government in Tamil Nadu is saying. A shot in the arm for Tamil Nadu government as the Madras High Court stayed the Enforcement Directorate's summons to 5 district collectors for 3 weeks over alleged money laundering with proceeds from illegal sand mining. The DMK ruled state and the bureaucrats asked to appear by the ED told the court that the central agency has no jurisdiction to investigate this case by itself, let alone summoning collectors, treating them as accused or witnesses. It should have only asked the state to inquire or sought information. The Tamil Nadu government also claimed the ED's estimation of 4,000 crore worth of illegal sand mining is inflated to tarnish the ruling DMK, besides violating federalism. ED should have, if it comes across some illegalities happening, should have informed the state government under section 66 of the PMLA that please investigate this matter. Rather, ED is investigating the matter by itself, which authority it is not having. They are doing it without any jurisdiction. That action is in fact impinging the federalism. As this turns into a center-state tussle, whether ED can summon state government officials during investigations without the consent of the state government is the moot point that the court has to decide. The central agency strongly argued it's well within its powers, and the final verdict in this case could well be crucial. The court, however, has not stayed the ED's investigation. Although this is only an interim order, this is being seen as a victory for the opposition that accuses the central government of deploying its central agencies in opposition-ruled states and whitewashing its opponents who join hands, a charge the BJP has denied. In Chennai with Suresh, Sam Daniel, Find TV. Thank you, Sam, for bringing us all those details. Moving on to COP28, which will begin tomorrow. The world leaders are set to discuss tackling climate change at the COP28 summit in the UAE until the 12th of December, starting tomorrow. More than 200 governments are invited along with charities, community groups, think tanks and businesses. The Prime Minister of India will also be attending the summit on climate change. Ahead of Prime Minister Modi's visit to the UAE, the ambassador to UAE said that India has always walked the talk on the issue of climate change. While according to reports, US President Joe Biden will not be attending the summit, and nor will Pope Francis, who is expected to skip the meeting over grounds of being unwell. COP28 एक बहुत ही बड़ी और एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो अपने आप में एक प्रमाण है कि कितना ये इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आने की। और जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है विच हैज़ वॉक द टॉक। इंडिया ने एक लीडरशिप रोल प्ले किया है अंडर द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सो द फैक्ट दैट वी अकाउंट फॉर 1/6 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और बहुत सारे हमारे अपने चैलेंजेस हैं।